Hello friends, welcome to my YouTube channel all about HPSET. In the previous video, I have discussed 25 questions of HPSET 2019 paper 1. In this video, I am going to discuss remaining questions of this paper. In question number 26, we have a meta-analysis would allow you to analyze the reliability of a study, analyze the antecedents of a behavior, explore variations in the outcome of various studies, replicate many studies. तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, एक्सप्लोर वेरिएशंस इन द आउटकम ऑफ वेरियस स्टडीज. In the next question, a qualitative research design seeking to describe and analyze all or part of the culture of a community is known as, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंथोग्राफिक स्टडी, मानव जाति विज्ञान अध्ययन. तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी. In question number 28, we have citation means that a particular paper is being quoted in another paper by another author, reproduced elsewhere, sold to another publisher, discussed orally by another author. तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, quoted in another paper by another publisher. In question number 29, we have which of the following is true of ex post facto research design? Option A, we have it is true experimental design based on random assignment of subjects to control and experimental group. It examines retrospectively the effect of a naturally occurring event on the subsequent outcome. It allows the researcher to precisely manipulate the independent variable. It is a pre-experimental design based on pre-test and post-test of a वन ग्रुप. तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, इट एग्जामाइन रेट्रोस्पेक्टिवली द इफेक्ट ऑफ अ नेचुरली अकरिंग इवेंट ऑन द सब्सिक्वेंट आउटकम. इन क्वेश्चन नंबर 30 वी हैव which of the following is not an assumption of the positivistic approach to educational research? Option A, we have all genuine knowledge is based on sense experience. Option B, the methodological procedure of a natural science may be directly applied to the social sciences. Third option, human beings respond in a deterministic fashion to the situation of the external world. In the fourth option, we have social reality is subjective and personal. तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन डी, सोशल रियलिटी इज सब्जेक्टिव एंड पर्सनल. क्वेश्चन नंबर 31 to 35 हमें पैसेज को रीड आउट करके इसके हिसाब से आंसर करने हैं. तो इन क्वेश्चन नंबर 31 वी हैव according to the above passage which of the following are indicative of the reasons for preparing alternative supplementary learning material? Option A, some learners may not have access to digital resources. Option B, occurrence of COVID-19 pandemic. Option C, identification of hotspots. ऑप्शन डी, फॉर प्रिपेयरिंग पोस्टर्स एक्सप्लेनिंग लर्निंग आउटकम्स. तो जब आप पैसेज को रीड आउट करोगे तो आप देखोगे कि इसमें जो हमारे पास इन्होंने रीज़न दिया था कि क्यों हमें जो अल्टरनेटिव सप्लीमेंट्री मटेरियल हम तैयार कर रहे हैं बच्चों को, तो उसका रीज़न बेसिकली पैरा में यही दिया था बिकॉज कुछ बच्चों को जो है तो क्या डिजिटल रिसोर्सेज तक वो पहुंच नहीं है उनकी. सेकंड, जो हमारा कोविड-19 का पैंडेमिक जो आया है उसकी वजह से हमें सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल उनको प्रोवाइड करवाने पड़ रहे हैं. बाकी जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉटस्पॉट था और ये जो फॉर प्रिपेयरिंग पोस्टर एक्सप्लेनिंग लर्निंग आउटकम्स था ये क्या था, उसके बाद का प्रोसीजर था. ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिसमें कि हमारे ए और बी इंक्लूडेड है. In question number 32, we have implementation of learning outcomes based curriculum necessarily demands option A, pandemic or disaster management situations, development of targeted learning materials, having digital or online access. Next is conducting national achievement survey. तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, डेवलपमेंट ऑफ targeted learning materials. In question number 33, we have provisions of supplementary or alternative academic learning material is expected to lead to option A, provisions of digital or online access, improvement in learning levels of students,
एनहेंस्ड एक्सेस टू डाइवर्स लर्नर्स और प्रमोशन ऑफ क्वालिटी। तो जब आप देखोगे तो ये जो बच्चों को ऑनलाइन असेस का तो इसके साथ कोई लेना देना है नहीं, सप्लीमेंट्री मटेरियल जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए तो इंक्लूड होगा नहीं। और बाकी जो ये सारे हमारे पास दिए हुए हैं, जैसे बी ए की इम्प्रूवमेंट होगी लर्निंग लेवल में, ये भी होगा इसमें, है ना। डाइवर्स लर्नर की जो उनमें इंक्रीमेंट होगा वो भी होगा, है ना। तो प्रमोशन ऑफ क्वालिटी तो वो भी होगी। तो इसमें बी, सी और डी तीनों इंक्लूड होंगे। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आएगा ऑप्शन बी, जिसमें कि बी, सी और डी इंक्लूडेड है। सो द राइट ऑप्शन इज बी। In question number 34, we have the prerequisite for preparation of supplementary or alternative academic learning material is demystification of hard spots, identification of hard spots, explanation using infographics, posters or presentations, setting up of foundational literacy and numeracy mission। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हार्ड स्पॉट्स। ओके। इन क्वेश्चन नंबर 35 we have NCERT has been asked to prepare supplementary or alternative academic learning material for primary class by, ठीक है। कब तक इनको ये सप्लीमेंट्री अल्टरनेटिव लर्निंग मटेरियल जो है प्रिपेयर करना है? तो इसके लिए जब आप पैराग्राफ में देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने बोला है कि क्लास 1 to 5 कब तक अचीव करना है, दिसंबर 2020 तक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, दिसंबर 2020। ओके। In question number 36, we have non-verbal communication does not involve option A gestures, साइलेंस, वर्ड्स और एक्सप्रेशंस। तो फ्रेंड्स, जब कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होगी तो जेस्चर्स तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, है ना। साइलेंस भी होगी और एक्सप्रेशंस भी हम उसमें यूज करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ही ये हुआ कि जिसमें कि हम वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या इन्वॉल्व नहीं होगा? सी, दैट इज वर्ड्स। ओके। In question number 37, we have filters that affect the content of a message lie in option A, in the mind of speaker, option B, medium of communication, option C, the mind of the listener, option D, the mind of both the speaker and the listener। ठीक है। तो किसी भी मैसेज का मीनिंग कहाँ से हम इंटरप्रेट करते हैं कि बोलने वाले ने किस तरीके से बोला, या फिर कई बार क्या होता है कि सुनने वाला ही कुछ अलग तरीके से ले लेता है ना। तो ये क्या है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कि दोनों के माइंड के ऊपर वो डिपेंड करेगा, द माइंड ऑफ बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। In question number 38, we have the imparting or exchanging of information on a large scale to a wide range of people is called, तो इसको हम क्या बोलते हैं? mass communication। right option is option D. In question number 39, we have which of the following characteristic of effective classroom communication। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो इफेक्टिव हमारी क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसके लिए क्या इफेक्टिव है ना। तो नॉइस, अगर नॉइस ज़्यादा होगी तो क्या हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी? कभी भी नहीं, है ना। तो उसके बाद क्या है? प्लानिंग। अगर हम प्लानिंग के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, पहले से हमने प्रिपेयर किया होगा कि हाँ जी हमें इस टॉपिक पे आज जो है तो डिस्कशन करना है, या फिर जो भी हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, हम कुछ पूछ रहे हैं किसी से, है ना, तो वो हमारी उसको कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएगा अगर हम उस काम को प्लानिंग के साथ करेंगे, है ना। अगर हम कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करेंगे तो भी हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होने वाली है ना। यूज ऑफ जार्गन्स, इससे भी हम अगर हम शब्द जाल को प्रयोग करेंगे तो भी हमारी कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज प्लानिंग। ओके। इन क्वेश्चन नंबर 40 we have two increasingly important ethical aspect of social media are, तो कौन से हैं? ये है ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। In question number 41 we have which find the number which when added to itself 13 times gives 112। ओके, कि कौन सा नंबर है जो मैं खुद में ही उसको 13 बार ऐड करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए? 112। ओके। तो अब देखो, मतलब अगर मैं मान लूं कि वो नंबर मेरे पास क्या है? x है ना। तो अब मुझे इसको कितना 13 टाइम x को ही इसमें ऐड करना है, तो कितनी बार हो गया ये टोटल? 14 टाइम्स। अब ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मैं अगर 14 टाइम ऐड करूं तो नंबर मेरे पास क्या आना चाहिए? 112। यानी कि अब देखो, अगर मैं 14 टाइम 8 को ऐड करूंगी या 7 को ऐड करूंगी, 9, 11 किसी को भी ऐड करूंगी, है ना, तो क्या अगर मैं सिंपली उसको 14 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी मेरे पास वही नंबर आने वाला है ना। तो अब आप इन्हीं को चेक करके देख लीजिए। 14 7 112 नहीं होता, लेकिन 18 14
सॉरी 14 इंटू 8 कितना होता है हमारे पास 112। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगर आप 8 को 8 में 13 टाइम 8 और ऐड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो यही आने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला था, द सीरीज 0 1 1 2 3 5 8 13 इज द एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन थे अरिथमेटिक सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ऑड इवन सीक्वेंस। तो ये तो आपने पढ़ा ही होना एपी और जीपी, है ना। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस जिसको कि हम एपी बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है हमारे पास जो हम इनके कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम आती है। मतलब 1 - 0 अगर 1 आया तो यहाँ पर भी अगर मैं थर्ड नंबर में से सेकंड नंबर माइनस करती तो जो मेरे पास डिफरेंस आता वो पीछे वाले के जैसे आता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो ये एपी का एग्जाम्पल तो है नहीं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे क्या रेशियो बराबर आती थी, है ना, T1/T2 आप इसमें निकालते थे, तो ये भी इसमें नहीं होगा। आगे हमारे पास बचा फिबोनाची सीक्वेंस। तो इन फिबोनाची सीक्वेंस each number is the sum of the two preceding ones। ठीक है, तो आप देखोगे तो 0 + 1 कितना होता है 1, है ना। फिर 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस का। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। In question number 43 we have choose the next number in the series of। हमारे पास एक सीरीज दी है और इसमें हमसे नेक्स्ट नंबर पूछा है। तो जब आप इस सीरीज को देखोगे तो क्या है 4 किसका है 2 का स्क्वायर, 9 किसका है 3 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 49 किसका है 7 का स्क्वायर, 121 किसका है 11 का स्क्वायर और 169 किसका स्क्वायर है 13 का। तो आप जब ये नंबर को देखोगे 2 3 5 7 11 13 17, है ना, सॉरी 13 तक, है ना। तो ये नंबर्स कौन से आए प्राइम नंबर्स हैं ये। तो 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा 17। तो 17 का स्क्वायर हमारे पास कितना आता है 289। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। In question number 44 we have how many even numbers are there in the following series of numbers each of which is immediately preceded by an odd number but not immediately followed by an even number। क्या बोला कि ऐसे even numbers बताओ कि जिनके पीछे तो odd number होगा लेकिन बाद में भी क्या even number नहीं होगा। मतलब बाद में भी क्या होगा odd number होगा, पीछे भी ऑड नंबर हो और आगे भी ऑड नंबर हो। तो ऐसे नंबर अब देखो यहाँ पर पहले तो सबसे पहले हमारे पास इवन नंबर है कौन से 4, है ना। अब इसके पहले तो ऑड है लेकिन बाद में क्या है इवन है, जो कि नहीं होना चाहिए था, तो ये नंबर भी हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या बोला था अगला इवन नंबर आया 8, 8 के पीछे इवन है आगे ऑड है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद आया 6, आगे भी ऑड है पीछे भी ऑड है, तो ये एक नंबर हमारे पास है ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इवन नंबर है हमारे पास 2, तो 2 के पीछे भी ऑड है और मतलब इधर भी ऑड है और इधर भी ऑड नंबर है, तो ये नंबर भी हमारा होगा। नेक्स्ट हमारे पास अगला देखो 8, 8 के इधर भी ऑड है और इधर भी ऑड नंबर है, तो ये नंबर भी होगा। तो कितने नंबर आ गए हमारे पास टोटल 3 नंबर्स। तो इसमें क्या होगा राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। इन क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास स्टैंड इन अ सिंगल लाइन अमित इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ द एंड्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो अब देखो इसके क्या है 18 एक साइड है और 18 दूसरी साइड है, यानी कि 19th पोजीशन पे है ना। तो इसके क्या हुआ 18 इस साइड हुए और 18 ही इस साइड हुए। तो अब देखो 18 स्टूडेंट्स ये हो गए 18 ये हो गए, 18 + 18 36 और एक ये वाला है ना बीच में ये खड़ा है 19th पोजीशन पे खड़ा है, तो +1 करके कितना आ गया हमारे पास 37। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दैट इज 37। In question number 46 we have given below are 2 premises and 4 conclusions are drawn from them, है ना। select the quote that state the conclusions validly drawn। ठीक है, हमारे पास क्या है 2 premises दिए हैं और कुछ conclusions दिए हैं और पूछा है कि कौन कौन सा conclusion जो है ना वो valid है given premises के लिए। तो पहले तो हम premises देखेंगे क्या क्या दी है। तो पहली premises क्या दी है all religious persons are emotional और दूसरी दी है कि जॉर्ज इज अ रिलीजियस पर्सन। तो पहले तो बोल दिया कि जितने भी धार्मिक लोग हैं वो सारे क्या है इमोशनल है, और दूसरा बोल दिया कि जो कोई जॉर्ज है ना ये कैसा है रिलीजियस
रिलीजियस पर्सन है। अब हमारे पास कंक्लूजन क्या दिए कि जॉर्ज क्या है, इमोशनल है। तो जब इन्होंने बोल दिया कि जॉर्ज रिलीजियस है और सारे रिलीजियस पर्सन क्या है, इमोशनल है, तो जॉर्ज भी इमोशनल हुआ है ना, तो ये वाला ऑप्शन तो ठीक है, ये वाला कंक्लूजन ठीक है। नेक्स्ट, ऑल इमोशनल पर्संस आर रिलीजियस। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि रिलीजियस पर्संस आर इमोशनल, ये नहीं बोला था कि इमोशनल भी सारे इमोशनल रिलीजियस है ना। तो ऐसा कोई इन्होंने हमें दिया नहीं था प्रीमिसेस, तो ये वाला ऑप्शन हम इंक्लूड नहीं कर सकते। अगला था ऑल पर्संस आर रिलीजियस, कि सारे लोग रिलीजियस होते हैं, तो ऐसा भी कुछ इन्होंने हमें बोला था। नेक्स्ट था कि सम रिलीजियस पर्संस आर नॉट इमोशनल, ठीक है। फिर क्या बोला कि जो सारे रिलीजियस पर्सन हैं इमोशनल नहीं है, तो इन्होंने शुरू में ही बोल दिया था कि सारे रिलीजियस पर्सन कैसे हैं, इमोशनल हैं, तो ये वाला कंक्लूजन भी गलत है ना। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, जिसमें सिर्फ पहला इंक्लूड है, यानी कि ऑप्शन बी, वन ओनली, कि सिर्फ और सिर्फ यही हमारा कंक्लूजन ठीक है कि जॉर्ज एक इमोशनल आदमी है, ठीक है। In question number 47, we have A is a sister of B. F is the daughter of G. C is the mother of B. D is the father of C. E is the mother of D. A is related to D as. अब क्या पूछा है कि A अब D के साथ कैसे रिलेट करता है, तो चलिए अब हम एक फ्लो डायग्राम से इसको देखेंगे। अब क्या बोला था सबसे पहले इन्होंने कि A क्या है, किसकी सिस्टर है, B की। अब A क्या हुआ, सिस्टर है तो क्या हुई है, फीमेल, तो हमने क्या किया, B को यहाँ लिख लिया और इसी के साथ ही एरो लगा के A लिख लिया और A के साथ ब्रैकेट में F लिख लिया, इससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, फीमेल है ना। फिर नेक्स्ट इन्होंने बोला कि F इज द डॉटर ऑफ G, तो इसका तो अभी तक हमें कहीं पर भी इसके दोनों के साथ कोई रिलेशन है नहीं, तो फिलहाल हम इसको छोड़ रहे हैं। उसके बाद क्या बोला कि C इज द मदर ऑफ B, C किसकी, B की मदर है, तो हमने एक ऊपर को एरो बना लिया और यहाँ पर लिख लिया C के साथ फिर से क्या लिख दिया ब्रैकेट में F, क्योंकि ये क्या थे, मदर थे, तो ये क्या है, फीमेल। अब C किसकी मदर है, B के, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोले उन्होंने, D इज द फादर ऑफ C, तो अब हमने C से भी ऊपर को क्या लिख लिया, D, और D के ब्रैकेट में हम लिखेंगे अब M, क्योंकि ये क्या है, फादर है तो ये मेल है ना। तो अब ये D आ गए और फिर क्या बोला कि E इज द मदर ऑफ D। अब ये जो E है ये किसकी मदर है, D के, तो हमने अब E किसके ऊपर लिख लिया, D के, है ना। तो ये इनके ब्रैकेट में हम, ये मदर है तो इनके ब्रैकेट में हमारे पास आएगा F, है ना, ये फीमेल है, इन मदर है इनके, है ना। तो अब देखो, अब इस वाली बात जो हमने बोला था कि F इज द डॉटर ऑफ G, तो कहीं पर भी हमें F और G तो देखने को मिल नहीं रहे हैं, तो ये लाइन तो हमारी किसी काम की है नहीं। अब पूछा था कि A का क्या रिलेशन है D के साथ, है ना, तो जब आप देखोगे तो ये D क्या है इनके, जो अब A की जो मदर है ना, उसके क्या है, ये फादर है, तो अब ये क्या हुए इनके नाना, है ना, तो इसका क्या होगा, ग्रैंड डॉटर। ये जब अब इनकी क्या लगी, ये ए क्या है डी के लिए, इनकी ग्रैंड डॉटर है ना, नाती है ये। इन क्वेश्चन नंबर 48 वी हैव, हमारे पास क्या स्टेटमेंट दी है और उसकी कुछ एजम्पशंस दी हैं। तो स्टेटमेंट क्या दी है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ठीक है, अ वार्निंग प्रिंटेड ऑन द सिगरेट पैकेट्स. Which of the following assumptions is or are implicit in the above? Assumptions क्या क्या दी हैं, people read printed matter on a cigarette packet. दूसरी दी है people take careful note of a warning. थर्ड दी है नॉन स्मोकिंग प्रोमोट हेल्थ। तो आप देखोगे ना, तो अब अगर मैं इस एजम्पशन को कंसीडर करूं कि लोग जो है तो सिगरेट के ऊपर जो भी लिखा हुआ होता है वो पढ़ते हैं, पैकेट के ऊपर जो लिखा है वो पढ़ते हैं, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी भी पैकेट को पूरा पूरा बहुत ही रेयरली पढ़ते हैं, अदरवाइज हम सारा प्रिंटेड मटेरियल कभी नहीं देखते। तो ये वाली एजम्पशन तो इतनी ज्यादा कुछ वैलिड लग नहीं रही है ना। तो दूसरा क्या बोला था कि लोग वार्निंग का ध्यान रखते हैं, तो हाँ जी, अगर कहीं पर भी हमें ऐसा दिख जाए ना कि वार्निंग, तो हर कोई उसको तो कंसीडर करता है, उस पे एक नजर देता है, तो ये वाली एजम्पशन तो उनकी ठीक है। अगला क्या बोला था कि नॉन स्मोकिंग प्रोमोट हेल्थ, ये भी है, पर लोग उन्होंने ये जो उन्होंने बेसिकली ये एजम्पशन जो इसके साथ इम्प्लिसिट हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड ही हो रही है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ओनली 2 इज इम्प्लिसिट, दैट इज ऑप्शन बी। In question number 49 we have the position of how many letters in the word Indian remain unchanged when they are arranged in alphabetical order. कितने words ऐसे हैं इस Indian word में जिनकी letters की position change नहीं हुई है alphabetically जब आप इनको लिखोगे। तो जब आप Indian को alphabetically लिखोगे तो कुछ इस तरह से आएगा ADIINN, है ना। तो अब देखो फर्स्ट पोजीशन पे क्या था I, लेकिन यहाँ क्या है A, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर क्या था N, यहाँ पर क्या आ गया
डी, ये भी नहीं होगा। थर्ड पे क्या था? डी। यहाँ पर थर्ड पे क्या है? आई। पर यहाँ पर फोर्थ पर भी आई है और यहाँ पे भी फोर्थ पे आई है, तो एक नंबर तो ये कंसीडर हो गया। यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है? एन, तो ये भी नहीं होगा। बट लास्ट में यहाँ पर भी एन है और यहाँ पर भी एन है, तो कितने लेटर्स आए हमारे पास? 2। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। In question number 40, we have anthropology is related to man in the same way as anthology is related to, है ना। तो एंथ्रोपोलॉजी में क्या है? हम मैंस की स्टडी करते हैं ना इसमें, और जो एंथोलॉजी है उसमें हमारे पास पोइम्स वगैरह इंक्लूड की जाती है ना, पोइम्स की स्टडी, उनकी कलेक्शन वगैरह वो सब इसमें होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज पोइम्स। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा पेपर 1 का सॉल्यूशन जो है वो पूरा होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में भी इस चैनल में आपको HP सेट से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।